Okay, so I'm just going to screen share again, and we'll start at the top. And having greater power in our Christian walk. और हम मसीही काम में जो सबसे बड़ा सैतून है, हम उस पर गौर करते हैं. There's two things that will cause the unsaved world to come to Christ. It's God's love in us. सारी तालीम का मकसद सिर्फ ये है कि बाकी जो बेदीन दुनिया है, हम उसको मसीह यीशु के करीब लाएं और उनको प्यार करें. And that they see God's power operating through our lives as well. और वो लोग हमारे अंदर से खुदा की कुदरत को देखें कि खुदा हमारे अंदर काम कर रहा है. God is the God of all power. खुदा तमाम कुवत का सरचश्मा है. आमीन. He's also the God of love. और वो काम करने वाला खुदा है और वो मसीहियों के साथ साथ चलता है. The psalmist wrote in Psalm 147:5, "Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite." आए ज़बूर 147 और उसकी 5वीं आयत पर गौर करें. ज़बूर 147 5वीं आयत, ये लिखा है. Jesus, just let me read the words, please. Sorry. लिखा है, हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है और उसके फहम की इंतहा नहीं. आमीन. Amen. In Matthew 28:18, Jesus also said, "All authority has been given to me in heaven and on earth." और मसीह यीशु ने मुकद्दस मत्ती की अंजील के मुताबिक ये कहा As Christians, कि तुम दुनिया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. आमीन. as Christians, we are Christ's ambassadors here on earth, his hands and feet, and in his name we have great authority and power. और मसीह में होते हुए हमारे पास एक बड़ा इख्तियार है और जो कुछ इख्तियार मसीह यीशु के पास है, उसकी कुदरत के वसीला से वो इख्तियार हमारे पास है. आमीन. It's amazing how God can do miracles when we pray. और खुदा आज की तालीम के वसीला से बड़े-बड़े मोजज़ात करे, मैं ये दुआ करता हूँ. There was a 4-year-old girl here in Australia that got lost and had not been seen for 19 days. और 40 साल की एक नौजवान खातून थी जो गुम हो गई और 90 दिनों तक वो भटकती रही. So on Monday night we prayed that if she was still alive, she would be found. और हमने फिर मंडे को दुआ की, सोमवार को दुआ की कि खुदा अगर वो जिंदा है तो फिर उसको जाहिर कर. In the natural, after 19 days, you would think she's probably not alive. और फिर कुछ दिनों के बाद वो जिंदा पाई गई और वो हमें मिल गई. आज खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. Amen. We prayed Monday night. She was found Tuesday. हमें और मंगल के दिन को वो मिल गई. आमीन. We have a God that's able to do the miraculous. हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो मोजज़ात का खुदा है. Jesus said in Mark 16:17-18, "And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover." मुकद्दस मरकज के मुताबिक लिखी गई पाक अंजील 16 बाब और उसकी 17वीं आयत से यूं लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे,
वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। The early, आमीन। the early church moved in powers and miracles were commonplace. इब्तदाई कलीसिया के अंदर खुदा ने बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए और वो ईमान में चलते रहे। It's a season now where we need to once again see the miracles of God being commonplace. और अब ये सीजन है कि हम एक बार फिर खुदा के मोजज़ात और उसके अजीम कामों को देखें। Especially now, given the lawlessness we see in our world, more than ever now, we need to minister in the power of the Holy Spirit. और आज की दुनिया में हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि खुदा मोजज़ात और निशानों के वसीला से काम करे। That आमीन। as we preach the gospel, people are loosed from the kingdom of darkness and become part of God's glorious kingdom. और जो ही हम खुदा जो जैसे कि हम खुदा के खादमीन हैं, हम खुदा में ऐसे चलें कि हमारे अंदर से खुदा का जलाल निकले और मोजज़ात हो और निशानात के वसीला से हम खिदमत करें। The Apostle Amen. Paul wrote in 1 Corinthians chapter 2 and verse 3 to 5, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए 2 बाब और उसकी 3री आयत में ये कहते हैं, और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत के लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर माकूफ हो। आमीन। Amen. In 1 Thessalonians 1:5, it says, for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. और मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत सलानिकियों के नाम 2 बाब और 3री आयत, पहला सलानिकियों के नाम खत 2 बाब और 3री आयत में ये लिखा है, क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ। आमीन। It's so important that we are full of the word of God and full of the Holy Spirit. जरूर है कि हम रूहुल कुदस से भरे रहें और कुव्वत से भरे रहें। That we minister the word of God in the power of the Holy Spirit. और हम खुदा की कुदरत के वसीला से अपनी खिदमत करें। आमीन। God uses ordinary people to do great and mighty things for his glory. खुदा सादा और आम लोगों को चुनता है ताकि वो अपने जलाल को और अपनी कुव्वत को, कुदरत को जाहिर करे। All God needs is our availability and preparedness to take steps of faith. खुदा को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो ये कि हम अपने आप को पेश करें, अपने आप को दस्तयाब करें, और खुदा हमारे वसीला से बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। As Christians, we have the ability to achieve much for God's glory in great power and authority. मसीही होते हुए हमारे पास ये कुव्वत है कि हम मसीह यीशु के जलाल को मुनक्स करें और अपनी खिदमत में मसीह यीशु के जो मोजज़ात हैं और उसके निशानात हैं उनको जाहिर करें। The Apostle Paul wrote in Ephesians 3:20, now to him, that's God, who is able to do exceedingly
abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. कुदस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में कहते हैं, इफिसियों के नाम खात 3 बाब और 20वीं आयत लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है. It's God Amen. who anoints and empowers us to those great things for his glory. खुदा अपनी कुव्वत को हमारे अंदर से तासीर करता है और वो हमारे अंदर से अपने जलाल को बावर कराता है. Again, all that God needs is our availability and obedience to do his will. खुदा को हमारी फरमाबरदारी की जरूरत है और हमारी दस्तयाबी की जरूरत है. And God's strength is even made perfect in our weakness. खुदा की कुव्वत, उसकी कुदरत हमारी कमजोरियों में पूरी होती है. So we have the Holy Spirit living on the inside of us that empowers us to do great things for God's glory. और रूहुल कुदस हमारी मदद करता है कि हम खुदा के जलाल को अपने अंदर से जाहिर करें. Paul said in Amen. Romans 8:11, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 8 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, रोमियो के नाम खत 8 बाब और उसकी 11वीं आयत यूं लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है. So the Amen. spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in us. That's the power within. खुदा की कुदरत जो हम में बसी हुई है. However, to consistently maintain our passion for the things of God and to consistently minister in his power and anointing, it's crucial that we always maintain an intimate walk with the Lord. लेकिन जरूर है कि वो चीजें जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, वो कुव्वत, वो कुदरत जो खुदा ने हमें बख्शी है, जरूर है कि हम लगातार मुस्तकिल तौर पर हम उसके साथ जुड़े रहें और उसके पीछे चलते रहें. Amen. This is why it's so important that we never get too busy in ministry, but that we only do the things that God puts in our heart to do. इसलिए जरूर है कि हम अपनी खिदमत में ही मसरूफ ना रहें, बल्कि खुदा की ताबियादारी और उसकी आवाज सुनने और उसके साथ भी वक्त गुजारने में मसरूफ रहें. It's Amen. spending time intimately with the Lord that gives us boldness and power in our ministry. आखिरी अयाम के अंदर जितना ज्यादा हम खुदा के करीब रहेंगे, जितना ज्यादा हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उतनी ज्यादा कुव्वत और कुदरत हम में से निकलेगी. Amen. In the book of Acts, chapter 4 and verse 13, it says, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized they'd been with Jesus. अमाल की किताब 4 बाब और 13वीं आयत में यह लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और ना वाकिफ आदमी हैं, तो ताजुब किया. फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं
आमीन। When you spend intimate time with the Lord, there's a boldness that comes upon you to do great and mighty things for God's glory. Recently, Are you with me? I was sitting in a park, spending time with the Lord, when I saw in the far distance some big power lines. Sir, I cannot hear you. No, I cannot hear you, please. Amen. We need to get the sound back on. That's better. Is that better? Praise the Lord. Hallelujah. That's good. So I can hear you clearly again. Just give me 1 second. There is a problem with the sound system. Give me 1 second, Okay, please. no dramas. Oh, give me 1 more second, please. There is a problem with the big screen. Okay, so I was recently sitting in a park, just spending time with the Lord, and I looked in the distance and there were some power lines, electric power lines. Sorry, I could not get your point. Please come again. So I was in the park and in the distance, I saw some big power lines, electric power lines. और मैं एक पार्क में था और दूर से मैंने बिजली के जो उसको चमकते हुए उसको स्पार्क करते हुए देखा. And then I just felt the Lord as I was looking at the power lines in the distance, that he impressed upon my heart that we must not get too far away from the power source. और फिर एक मुकाशवा एक बात मेरे दिल में खुली कि जिस तरह ये तारें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं और करंट इनमें से निकल रहा है, जरूर है कि अगर मैं अपने खुदा से जुड़ा रहूंगा तो मेरे अंदर से करंट निकलता रहेगा. आमीन. By being sidetracked in our walk with the Lord and having wrong priorities that take us away from that presence of the Lord. और अगर मैं खुदा से दूर रहूंगा तो फिर दुनिया की बातें, फिक्रें और सारी चीजें मुझे घेर लेंगी और हो सकता है कि मैं पूरे तौर पर खुदा का काम भी ना कर सकूं. That we need to continually stay close to the power source by maintaining intimacy in our walk with the Lord and being filled with all the fullness of God. इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और उसके साथ करीबी ताल्लुक बनाए रखें और हर रोज उसके कदमों में झुकते रहें ताकि उसकी कुव्वत, उसका जलाल हम में से जाहिर होता रहे. आमीन. When I preach, I normally spend a day preparing the message. और जब मैं मुनादी करता हूं तो मैं एक पैगाम देता हूं. But then I spend a lot of time with the Lord preparing my heart to preach the message. पहले मैं किसी का सुनाया हुआ पैगाम सुनाता था, लेकिन फिर मेरे अंदर ये बात आई, मैं रूह में रो रो कर दुआ करके और खुदा से कलाम मांगने लगा. We must always minister out of the overflow of the Holy Spirit in our lives. हम जब खिदमत करते हैं तो हमारे अंदर से रूहुल कुदस बहना चाहिए. Because if we keep giving out without being filled up, we'll become depleted in our walk with the Lord. और जो हम खुदा के करीब आएंगे, खुदा हमारे अंदर बसता जाएगा और उसका जलाल. So we must not allow people to drink from our cup. When you look at this cup here, there's only a little bit left, a little bit of water left. It needs to be filled up again to overflowing.
like a और cup. ये कप, ये गिलास जो आप देख रहे हैं, लोगों की जिंदगियां भी ऐसी हैं कि उनकी जिंदगियों में पानी जो है वो थोड़ा सा है। हमें जरूरत है कि हम खुदा की कुदरत को, उनके जलाल को उनकी जिंदगियों में भर दें, ताकि उनकी जिंदगियों से पानी बहना शुरू हो जाए, Amen. As we जलाल बहना minister शुरू हो जाए। out to others, आमीन। we need to then be filled afresh ourselves with the Holy Spirit. इसलिए पहले जरूर है कि पहले हम अपने आप को रूह कुदस से और मसा से भरते रहें। आमीन। Apostle Paul wrote in Ephesians chapter 3 and verse 17 to 19, he said that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. और मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए 3 बाब और उसकी 17 आयत में ये कहते हैं, 17 से 19 आयत में, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके और सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। आमीन। Jesus himself, during his ministry here on earth, depended on the Holy Spirit during his time here on earth. मसीह यीशु अपनी जमीनी खिदमत में उन्होंने भी रूहुल कुदस की कुव्वत को महसूस किया, उसके बगैर उन्होंने खिदमत नहीं की, यानी कि अपनी खिदमत के लिए उनको भी रूहुल कुदस की जरूरत थी। आमीन। And he often withdrew to spend time alone praying to his Father in heaven. और इसलिए बहुत दफा हमें कलाम खुदा में मिलता है कि वो अकेले जाकर वो अपने बाप से दुआ करता था और रूहुल कुदस के साथ वक्त गुजारता था। It is आमीन। good to start the day in the presence of the Lord to get his perspective for what he has for your day. इसलिए जरूर है कि हम भी हर रोज एक वक्त निकालें और खुदा की कुर्बत के अंदर रहें, खुदा के मोहब्बत के और उसके ताल्लुक के अंदर रहें। आमीन। In the Gospel of Luke we read, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Now it happened on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई पाक अंजील 5 बाब और इसकी मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई पाक अंजील 5 बाब और इसकी 16वीं आयत में यह लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मौलम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। Amen. Some of the old evangelists were so full of God's presence from spending time with the Lord, they would walk into a factory and people would go down and repent in tears of repentance. Such was the presence on their life. और खुदा की कुदरत, उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी ये है कि हर एक शख्स, जब आप रूह कुदस से भरे होंगे, अगर मुबशरे अंजील रूह कुदस से भरे होंगे, तो आपके साथ जितने लोग हैं वो भी उसकी हजूरी और उसके मसा और उसकी मौजूदगी को महसूस करेंगे।
Amen. In the book of Acts, we read how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. और अमाल की किताब 10 बाब और उसकी 38 आयत में ये लिखा है, अमाल 10 बाब 38 आयत, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था. Amen. Amen. But you know, there's a great need for Jesus, but we're now also living in the lawless times that Jesus prophesied about during his time here on earth, when he said in Matthew 24:12-13, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. और इसलिए मसीह यीशु ने अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारी, इसलिए जरूर है कि हम भी अपनी जिंदगियां खुदा के साथ गुजारें. मसीह यीशु ने एक दरखास्त की, एक दुआ की, और वो हमें मुकद्दसमती की अंजील 24 बाब 12वीं आयत में उसने यूं फरमाया, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा. So how we need to purposely make time to spend with the Lord, that we don't lose our fire and passion for the things of God. इसलिए जरूर है कि एक दिन में हम जरूर वक्त निकालें कि हम अपने खुदा की कुर्बत में रहें, और उसका जलाल हम में से बहेगा, उसकी आग और मसा हम में से बहेगा. आमीन. In the Gospel of Luke, in Jesus' parable of the persistent widow, we read some incredible words from the unjust judge. और मुकद्दस लूका की अंजील में हम खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज सुनते हैं जो उसने बेइंसाफ काजी के मुतालिक कहे. He said, then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? So God answers our prayers, but I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? और कलाम खुदा में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई पाक अंजील 18 बाब 6 आयत में ये लिखा है, खुदा ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा. आमीन. Could it be through social media and all the internet that's one of the reasons why Jesus prophesied this? और आज मैं इस सोशल मीडिया पर खुदा का कलाम और खुदा का पैगाम आज आपको देता हूं. They say that some young people spend 11 hours a day on social media. आज बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और बाकी दूसरी चीजों पर, यूट्यूब पर 11 से 12 घंटे हर रोज गुजारते हैं. So what's going to influence the mindsets of the younger generation in these days? It's maybe not the Bible, but the spirit of the world. इसलिए फिर आज के जो नौजवान हैं उनका जहन खुदा की तरफ नहीं होगा, बल्कि उनका जहन दुनिया के कामों और दुनिया की तरफ होगा. This is why we've got to disciple the upcoming young generation in the ways of the Lord, that God will use them in a powerful way in the days to come. इसलिए खुदा के खादिम होते हुए जरूर है कि हम
बच्चों की उस राह में तरबियत करें कि वो खुदा की मर्जी को जाने और खुदा में जुड़े, खुदा में मजबूत हों और फल लाएं। आमीन। Amen. And so, given the lawless times we now are living in, more than ever before, we need God's power and compassion if we're going to make a difference in this world. इसलिए इस बेदीनी की दुनिया में आज जहां पर कोई कानून नहीं है, आज दुनिया जो अफरा तफरी का शिकार है, जरूर है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें और खुदा के साथ पेवस्त होने से हमारे अंदर से उसका जलाल बहेगा और हम बहुत सी रूहों की नजात का वसीला बनेंगे। आमीन। The one thing I want to protect in my life is that I never lose my passion for Jesus. और एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में देखता हूं वो ये है कि मैंने कभी भी खुदा के लिए अपना जज्बा, अपनी मोहब्बत जो है उसको ठंडी पड़ने नहीं दी। So what are some of the things that can draw us away from having intimacy in our walk with the Lord? और हम कैसे जान सकते हैं, कैसे खुदा के साथ अपना ताल्लुक बहाल रख सकते हैं, कैसे उसके साथ जुड़े रह सकते हैं? I'll just now very quickly list a number of things that can steal our fire and passion for the things of God. मैं जल्दी से आपको कुछ चीजों की फहरिस्त बताना चाहता हूं जो हमारे अंदर से खुदा का मसा, आग और उसका जलाल छीन लेती हैं। And our passion to help see people won to Christ in these coming days. और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो जरूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत में जुड़े रहें। Firstly, the cares of this world will choke the word in our heart. और सबसे पहली बात यह है कि दुनिया की जो फिक्रें हैं वो खुदा के कलाम को हमारे अंदर से निकाल देती हैं। We need to learn to give our cares to Jesus. हमें ये सीखना है कि हमें अपनी सारी फिक्रें अपने मसीह यीशु को सौंपनी है। God promises to meet our every need in life when we put Jesus first. खुदा ने हम सबसे ये वादा किया है कि हमें हर एक चीज में यीशु को आगे लाना है तो वो हमें बरकत देगा। Secondly, the pleasures of life, entertainment, can start to pull our heart away from Jesus. और दुनिया की जो लज्जतें हैं, जिंदगी की जो लज्जतें हैं वो भी खुदा के कलाम को चुराती और हमें खुदा के कलाम से दूर रखती हैं। A big one, allowing offenses and wrong attitudes to develop in our hearts. तीसरी जो बहुत ही अहम है वो ये है कि जब हम गलत कार्यों को और जराइम को जब हम अपने दिल में बढ़ने की इजाजत देते हैं। Jesus said in relation to the days we're living in that many will be offended, then betray one another, and then hate one another. और क्योंकि कलाम खुदा में लिखा बेदीनी के बढ़ जाने से बहुत से दिलों की मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी और लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। We must always be quick to forgive everyone that hurts us. हमें हर एक उस शख्स को माफ करना है जो हमें परेशान करता, हमसे नफरत करता और हमें दुख देता है। Because you cannot have your heart shut to others and open to God at the same time. क्योंकि आप एक वक्त में दो काम नहीं कर सकते। आप एक वक्त में तो अपना दिल दूसरों के लिए बंद करेंगे और खुदा के लिए खोलेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। दो चीजें एक वक्त में मुमकिन नहीं है। That's why Jesus said, if you have anything against anyone, forgive them. इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो उसे माफ कर दो। Persisting in an area of known sin in your life will begin to harden your heart towards God as well. और
अगर हम जानते हुए कि गुनाह हमारे दिल में है तो हम उस पे डटे रहेंगे, तो ये भी एक खतरनाक बात है जो खुदा को हमारी जिंदगी में आने नहीं देगी। When we start to develop wrong priorities in life or personal ambition, that'll take us away from getting our sense of affirmation जब हम from गुनाह Jesus. करते रहेंगे, गलत बातों में डटे रहेंगे, गलत कार्यों में फंसे रहेंगे, तब खुदा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। Especially in the Western world, it's called keeping up with the Joneses, trying to impress your neighbors in the way you live your life. और बाकी जो मशरकी दुनिया है, जो यूरोपी बाकी दूसरे तीसरे जो मुल्क के लोग हैं, उनके अंदर ये बड़ी मशहूर बात है कि अपने हमसाए को मुतासिर करना। Having wrong, worldly minded friends coming into your inner circle of friends. और अगर दुनियादारी के जहनियत के लोग आपके हल्का अहबाब में होंगे, तो ये भी आपके लिए एक गलत, एक खतरनाक बात है। It's दुनियादारी important. की जहनियत के दोस्त। It's important that you only allow people of godly integrity into your inner circle of friends. जरूर है कि आपके हल्का अहबाब में वो लोग हो जो खुदा तरस और खुदा खौफी से मुलव्वस हो, जो खुदा के खौफ में रहे। आमीन। The Apostle Paul said, "Do not be deceived. Evil company corrupts good habits." और मुकद्दस पौलुस रसूल इसलिए तो कहते हैं कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। Starting to skip times of fellowship with the Lord because we become too busy in ministry and life. और अगली जो खतरनाक बात ये है कि जब हम खुदा की रफाकत से दूर रहते हैं, हम बहुत ज्यादा बिजी होने लगते हैं अपनी खिदमत में, अपने कामों के अंदर, और हम खुदा के साथ जब कम वक्त गुजारते हैं, ये भी एक खतरनाक बात है। Our love for Jesus must always be our greatest pursuit and priority in life. मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में सबसे बेहतरीन तरजीह होनी चाहिए। Not spending quality time in the Word of God and in prayer. और अगली बात कि जब हम खुदा के कलाम में और उसकी बातों में और दुआ में जब हम वक्त नहीं गुजारते, Again, just getting too busy in life. क्योंकि हम जिंदगी में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि हम दुआ करना, खुदा का कलाम पढ़ना और खुदा के साथ वक्त गुजारना भूल जाते हैं। So we just begin to drift away from God's plan and purpose for our और life. आहिस्ता आहिस्ता फिर हम खुदा के मंसूबों और उसकी बातों से फिर दूर होते चले जाएंगे। Every day I need God's perspective for what He has planned for today. हर रोज मुझे ये जानने की जरूरत है कि खुदा का मेरी जिंदगी में आज का मंसूबा क्या है। And again, Amen. just being distracted by the smartphone and social media, all these can rob us from intimacy with the Lord. और अब फिर वही बात, अगर हम स्मार्टफोन और बाकी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वक्त गुजारेंगे, तो फिर हम खुदा से दूर होते जाएंगे। So in Mark chapter 10 and verses 46 to 52, we can learn three important things. और मुकद्दस मरकस के मुताबिक लिखी गई पाक अंजील उसके 10वें बाब में मैंने 3 चीजें सीखी हैं। Now they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, throwing aside his garment, he arose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Mark 10:46-52. आय मुकद्दस मरकज के मुताबिक लिखी गई पाक अंजील 10 बाब और इसकी 46वीं आयत पर गौर करें। और वो यरीहो में आए और जब वो और उसके शागिर्द एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो बरतमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फील फूर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। We must never lose our hunger and passion for God's presence in our life. हमें खुदा की हजूरी की भूख और प्यास को कभी खत्म नहीं होने देना है। Like blind Bartimaeus, in this passage of scripture, we must firstly earnestly seek the Lord. और इस सारे हवाले में हमने ये सीखा कि खुदा की बादशाही की, उसके जलाल की तलाश करो। And then secondly, continue to walk in intimate fellowship with him, especially when God begins to bless your life and ministry. और दूसरी बात ये है कि हमें गहरे तौर पर मसीह यीशु के साथ रफाकत रखनी है, खास तौर पर जब हम खिदमत करते हैं, और इसलिए हमें उसकी कुर्बत की, उसकी रफाकत की बेहद ज्यादा जरूरत है। After being blessed with the miracle of receiving his sight, Bartimaeus continued to walk with Jesus. और जिस तरह बरतमाई वो अपने ईमान पर खड़ा हुआ और वो यीशु को पुकारता रहा और फिर यीशु ने उसकी मदद की। Finally, like blind Bartimaeus, we need to have faith to believe in the ability of Jesus to perform miracles in our life. और तीसरी बात ये है कि हमें इस बात पर कामिल ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें ये काबिलियत अता करता है कि हम दुनिया में मोजज़ात कर सकें। Jesus is the same yesterday, today, and forever. He still performs miracles. मसीह यीशु कल
आज और अब तक यकसा है। वो जो कल मौजज़ात करता था वो आज भी मौजज़ात करता है। आमीन। So, how important it is that we continually maintain an intimate walk with the Lord so that we can be continually filled with all the fullness of God and minister in His power and authority in these days that we're now living in. इसलिए ये बात बेहद ज्यादा जरूरी है कि हमारा गहरा ताल्लुक मसीह यीशु के साथ हो, हमारे उसके साथ ताल्लुक की भूख और प्यास कभी खत्म ना हो, और हम खिदमत में हमेशा उसकी खुशनुदी को, उसकी मर्जी को, उसके मंसूबों को जाने और उसके पीछे चलें। आमीन। I'll finish with two passages of scripture. Firstly, Jesus said in Luke 21, verse 34 to 36, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore, and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man." मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई पाक अंजील उसके 21वें बाब और 34 से 36वीं आयत में खुदा हमसे ये कहता है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रुए जमीन पर मौजूद हैं उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि उनको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। How Amen. important it is that our relationship with Jesus is the greatest priority as we see the nearness of the rapture of all true believers. इससे बड़ी अहम और बड़ी तरजीह की बात कुछ है ही नहीं कि हमारा ताल्लुक मसीह यीशु के साथ गहरा हो, ताकि जब कलीसिया को जलाली बदन में उठाया जाए तो हम हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करें। आए मसीह यीशु के लिए जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। In the book of Daniel we read, "But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits." और वो लोग जो जानते हैं कि हमारा खुदा कादिर मुतलक है, वो फिर बड़ी-बड़ी और अजीम बातें करते हैं। Like Peter and John, if you spend time intimately with the Lord, you'll have boldness in the way that you live your life and minister to others. जब मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना ने उस लंगड़े को ठीक किया तो उनके पास बड़ी दिलेरी और खुदा का जलाल मौजूद था। सब कहेंगे आमीन। Amen.